Friends, hurry up, solve the question. Good morning, Bete. Good morning. So we will do the numerical part of this assignment and later the new assignment. Shabash. So we are going from 15 question onward. Question number 15. Everybody please pay the attention. Which of the following explains why a baby voice is higher in pitch than in adult? In simple language, he wants to ask us why a child cry has more shrillness than the voice of the adult. Many students are raising the hand. It seems very confident. There is a turbonated boy raising hand in 8th A. Please come on the mic, bete. I want to ask what is your correct option? What is your chosen option for question number 15? Sir, option A. What it says? Read it loudly. A baby's vocal cords vibrate at a higher frequency. Very nice, very nice. So, whenever we compare the child voice with an adult voice, what we see, a child, there are two vocal cords, and two vocal cords are also there in the adult, but these vibrate at higher frequency. At higher frequency. बच्चा कोई मेरे से पूछेगा, sir, what do you mean by higher frequency? The meaning is the vibration per second, like my hand is vibrating. If I'm vibrating like this, the frequency is low. If I'm vibrating like this, and that means the vibrating thing is covering more oscillations in the same duration of time. So when it is so, larger number of oscillations of the vibrating body per unit time, that is known as higher frequency. So your answer is correct, A option. Let's move to the question number 16. Okay. What question 16 says? A pendulum completes 40 oscillations in 4 seconds. What is its frequency and time period? Let me tell you, my sweet students, what is pendulum first of all? Look here, Bache. This is the ceiling of the room, and I have taken a light weighted string and bob is tied to it. You can just imagine into your mind that a light weighted thread is there and some spongy ball is tied here. This spongy ball is given a jerk to one side, and from its mean position, it reaches to the extreme position left, and from there it symmetrically goes to the extreme position left. Earlier it was on right side and comes back to the mean position. This is mean position. This is extreme position right side. This is symmetrically extreme position left side. So whatever teacher has shown, I mean to say this particular section, mean to extreme, extreme to another extreme, and back to mean. Whatever I have shown with the yellow color is known as one oscillation. One oscillation. Okay, bete? So now question क्या है? The pendulum completes 40 oscillations in 4 seconds.
and what is its frequency. Time period is also asked, and given is 40 oscillations. इस तरह की 40 oscillations, 40 oscillations in how many time, how much time duration? In 4 seconds. This is given to us. How will solve us written? As per the definition of frequency, it is the number of oscillations in single second. Frequency is defined as number of oscillations in 1 second. Now question arises, how many 40 oscillations are completed in how many time duration? 4 seconds. But as per frequency, we have to calculate in how much time? Only 1 second. So 40 divided by 4. Total oscillations divided by total time. Total oscillations divided by total time in seconds. That is known as frequency. That means 10 oscillations per second. What is the unit of frequency? Hertz. That is the symbol. Total spelling is H-E-R-T-Z. Hertz. Okay. So this is our frequency. Now let's talk about time period. Before calculating time period, I have to make my students understand what is meant by time period. Look at the board. Do you still remember what the teacher has shown as one oscillation? Yes, sir. I still remember. From mean position to extreme position to symmetrically another extreme position, and back to the mean position. This much portion is known as one oscillation. How much time has been elapsed to complete one oscillation? That is known as time period. So one student may ask me in simple language, sir, do you want to say if this one oscillation takes for its completion, say 5 seconds, then can I say that time period of this simple pendulum is 5 seconds? Answer is correct, because the definition is how much total time duration has been passed in order to complete one oscillation. याद रहे, neither more than one nor less than one. Only one oscillation को कवर करने में जितना टाइम लग जाए उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. अब इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज सेकेंड. SECOND. If the student has seen very clearly, he will understand, sir, the definition of these two are different, are reciprocal of each other. I will ask how. Student will say, sir, here you have said number of oscillations completed in 1 second. Here you are deciding time is 1 and you are calculating the oscillations. But in the time period definition, you said oscillation is 1, time is required to be calculated. You are talking opposite. Here, time is 1 second fixed. Number of oscillations are required to be counted. Here, oscillation is 1, but time how much it takes to complete, that is required to be calculated. So from their definition, it is very much clear that time period and frequency are reciprocal of each other. So therefore, as we have calculated frequency is equal to 10 hertz, therefore time period is going to be, let's put the frequency value here, 1 upon 10 means 0.1 second. Let's pick up our two options. Shabash, what is your option? Which option you will take for the 16th question? Pick up your option. Either one finger or two finger, but according to your option, raise your one finger. If your option is 1, raise 4 fingers. So maximum students of 8th B are saying first option, and 8th A is also saying first option. Shabash. And that means you all have understood it. A option is correct. Very good. A option is correct. I expect that both of these questions are clear to you. Yes. बच्चों को ये दोनों समझ आ गया? Please raise your hand, right hand.
राइट हैंड राइट हैंड अगर आपको समझ आ, लेफ्ट हैंड आपने तब खड़ा करना है जब नहीं समझ डाउन डाउन. Let's move to the question number 17. That is also a numerical. Do yourself. Can you do 17th question yourself? Please read it. 17th question yourself. Object oscillates 20 times in 1 second. What is its frequency? Can anybody calculate it? Some students, yes. 8th B is, yes, 7 students are raising hand. 8th A, 5 students are raising. Okay, let's see. But as he has said, 20 oscillations in 1 second. Just see, 1 second. That means the body completed 20 oscillations in a single second. In other words, this language satisfies the definition of time period. So 20, sorry, frequency. It 20 oscillations per second means it satisfies the definition of frequency. So therefore, frequency is asked from us. Therefore, frequency is equal to 20 hertz. 20 hertz. Can anybody tell me, had he asked here the time period, how will you calculate time period? Is there any student in the same question? Had he asked the time period, how would you do? How would you do? find the time period. How will you find? Yes, you students are now feeling confident of its A class, but no hand raising still in class B and C. But the teacher is asking, if in the same question he is asking the time period, how will you do? 8th B and B, C not feeling confident. 8th A, many students are raising hands. Okay, buddy. One student now raising in the 8th B. शाबाश. 8th B का बच्चा रेड टी शर्ट में गुड़िया बैठी है. बेटे आप माइक पे बताओ तो क्या कहना चाहते हो? व्हाट इज योर आंसर? हाँ, बोलो बोलो, प्लीज स्पीक आउट. 8th B, रेड टी शर्ट, फर्स्ट बेंच. What is your answer? What is how will you calculate time period? Yes, she is correct. She understood, sir. If you are asking time period, you already told us time period are reciprocal of frequency. So frequency you have told us. So this is 1 upon 20 seconds. Got it? So what it will be? 0.05 seconds. The reason you understand? This is the way. Let's move to the question number 18. Hurry up. Question 18. Frequency is given as 1.5 kilohertz. Okay. So vibrations per second. How much are the vibrations? I would like to clear here. Vibrations and oscillations are one and the same thing. कितनी बार कंपन हुआ? Vibrations and oscillation in your class will be considered as same thing. Okay. So, can you tell me how will you calculate here? Is there any student who knows the meaning of kilo? Kilo means with the one. One के साथ कितनी zeros होती हैं? Then you say it kilo. Nobody. Acha, can you tell me
How many grams are there in 1 kilogram? How many grams are there in 1 kilogram? 1,000. So kilo means 1,000 weighting. Wherever you word use kilo, that 10 raised to power 3. So we have to convert it into international unit hertz. So therefore, 1.5 kilohertz. If we want to convert it into hertz only, not kilo, then what you have to do? 1.5 into 1,000 से multiply करना पड़ेगा. So that becomes 1500 hertz, and here is the decimal point. So 1500 hertz. So frequency आया इतना. What is the definition of frequency? Number of vibrations per second. So therefore, number of vibration in this question will be 1500. 1500 vibrations will be completed by the vibrating body in a single second. Okay. So this was your question number 8. Question 9. Amplitude of the sound beyond dash is considered as noise. Amplitude of the sound beyond dash is considered as sound. बेटे इस क्वेश्चन को आप काट दो. 19 क्वेश्चन को कट कर छोड़ दो. 20 क्वेश्चन छोड़ना इसलिए है कि इसकी लैंग्वेज में हल्की सी प्रॉब्लम. 20th question. A mosquito produces sound by producing 500 vibrations per second. What is the time period? शाबाश. 20 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो. देखते हैं दोनों क्लासों में कौन पहले बताता है. शाबाश. कंपटीशन बी एंड ए से 20 क्वेश्चन. बेटे ऑप्शन पिकअप करो. आपको पता है फर्स्ट वीक ऑप्शन है तो नंबर 1 फिंगर, फोर्थ है तो 4. Raise your finger according to the option. ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, देखो कौन से. 8th ए का तो मेरे को पता लग गया आंसर. नाउ 8th ए डाउन, 8th बी सेम आंसर कह रहे हैं. सो दोनों सेक्शन मेरे को दे आर ऑल टेलिंग सर आवर ऑप्शन इज ए ऑप्शन. लेट Why you should be like this? क्वेश्चन नंबर 20 में all of you are saying sir first option है. But let me explain and check whether you are saying say or true or not. Look here, 500 vibrations per second, and it means this is the definition of frequency. 500 hertz. What is the time period? Teacher already told you time period is defined as frequency. So 500 will be put here. So 500 here. Okay. What will be you are doing? Many students are committing mistakes here. For those students who are in doubt where to put the decimal after division, let me tell you a simple method. Or while dividing, always see the numerator should be larger. So I have made it 1000. Here 500. Students can ask me, sir, why you have made 1000 from the 1? Then I will say, no problem. Divide it by 1000 also. Now it is okay. 1000 and 1000 again make the 1. Sir, what is the utilization of this? The utilization is 500 when made double, it becomes 2000. Here it is 2, and the dividing 1000 remains as it is. Now it will help you to what? To decide the decimal where it will come. Okay, this is the way how to pick up the position of the correct position of the decimal. A option. दोनों सेक्शन विनर हुए. ड्रा हो गया मैच में. क्वेश्चन नंबर 21 डायरेक्ट. Which of the following voice, the following graph shows louder and which shows feeble sound? Louder sound कौन सी है बेटे? 21 में सेकंड फिगर या फर्स्ट? जो बच्चे सेकंड कह रहे हैं डबल फिंगर, जो बच्चे फर्स्ट कह रहे हैं सिंगल फिंगर. इनमें से ऊंची आवाज कौन सी? देखो तो कौन सी क्लास विनर हुई. सेक्शन ए का पता लग गया मेरे को. सेक्शन बी का. ये तो दोनों बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर सेकंड फिगर. लेट मी सी. अब मेरे को चेक करना पड़ेगा.
Question number 21 में my dear students, listen here. One figure is like this and other figure is like this. Remember, in both of these graphs, that the parameter should be mentioned. Please mention in your assignment. On this section here it is time. On this section here it is amplitude. Okay. So both graphs should be. Please mention the scale on your assignment. Amplitude and here it is time. So observing the two, we clearly see the amplitude of second one, A dash, is larger than the amplitude of first one, A. So A dash is much larger than A. Always remember, sound loudness, yeah, intensity you can say. It is directly proportional to square of the amplitude. What do you see? Larger is the amplitude, more will be its square, and more will be sound. Please note down this figure, this formula. Note down on your notebooks. More is the amplitude, more is the square of the amplitude, and larger will be the sound. So we have seen A dash is larger than A. Therefore, A dash square is also going to be larger than A square. Therefore, this second sound will be having higher sound. Higher sound. तो कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है सर ये बॉक्स में आपने क्या लिखा? I stands for intensity of loudness. किसी आवाज में कोई आवाज कितनी दमदार है, कितनी ऊंची है, वो डिपेंड करता है. इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटे, अगर राइट साइड इंक्रीज होएगी तो लेफ्ट भी इंक्रीज होगी. इस सिंबल का नाम याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर राइट साइड इंक्रीज होएगी तो लेफ्ट भी इंक्रीज होएगी. इसका मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे दो बच्चे आपस में खड़े हुए हैं, एक के पास बिस्किट्स हैं, एक के पास टॉफी है, तो आपने उसको 2 टॉफीज दे दी, उसने 2 कुकीज आपको दे दी, और वो बच्चा कहता है मेरे को और ज्यादा कुकीज दो, आप कहोगे नो पहले और ज्यादा टॉफीज दो, तो उसने टॉफीज एक्सचेंज करी, आपने कुकीज उतनी दे दी. दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा पैरामीटर बढ़ता है. ओके. तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, which property of the sound, question number 22, which property of the sound is shown by this graph? Shabash. Which graph shows chirping of the sound of the birds? Chirping मैंने पक्षियों का चहचहाना. अच्छा एक बात बताओ, जो पक्षियों का चहचहाना है ना, chirping of the bird, वो हायर फ्रीक्वेंसी साउंड है या लोअर फ्रीक्वेंसी? कौन बच्चा बताएगा? उसकी फ्रीक्वेंसी हायर है या फिर फ्रीक्वेंसी लोअर? अगर आपका ऑप्शन लोअर है तो सेकंड फिंगर, अगर 2 फिंगर्स, अगर हायर है तो 1 फिंगर. शाबाश. अगर आप सोचते हो चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी की है, कानों में तीखी चुभती है, तो 1. अगर लोअर फ्रीक्वेंसी है तो 2. व्हाट इज योर ऑप्शन? ए सेक्शन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शाबाश. और बी सेक्शन ने भी सही जवाब दिया, बिल्कुल सही. तो फ्रीक्वेंसी चॉपिंग ऑफ वर्ड्स की हायर मानी जाएगी. अब एक ग्राफ देखो बच्चे, पहले वाला ग्राफ है ऐसे, दूसरे वाला ग्राफ है ऐसे. इधर टाइम ही होता है बेटे, इधर एम्पलीट्यूड, अप डाउन, बीच में 0. एम्पलीट्यूड मेंशन कर लो, स्केल को मेंशन करो, आपके ग्राफ में मेंशन नहीं है. इधर टाइम. देखो बेटे ध्यान से सुना, जब आपने ये देखना होता है पेपर में कौन सी आवाज ऊंची है, तब तो आपने इसका हाइट देखना होता है. भाई बेटे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हाइट देखना होता है, या डेप्थ देखो, या डेप्थ. जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी, ये वाली एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, उतनी ऊंची आवाज होगी. लेकिन जब आपने फ्रीक्वेंसी देखनी हो, फ्रीक्वेंसी, तो बेटे आपने टाइम पीरियड देखना होता है. सबसे पहले एक क्रस्ट ऊपर वाला, एक ट्रफ.
और देखना है दोनों में टाइम पीरियड किसका है। ये इतना टाइम पीरियड होता है। ऊपर वाले सेक्शन को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। अब अगर मैं नीचे वाली डायग्राम में देखूं तो एक क्रस्ट एक ट्रफ यहीं पर खत्म होगी, तो इसको हम टी डैश बोल रहे हैं। इफ आई आस्क माय स्टूडेंट्स आउट ऑफ दीज टू टी ग्रेटर है या टी डैश ग्रेटर है, सभी बच्चे बोलेंगे सर टी डैश छोटा है, टी बड़ा। ओके, अब पेपर में तो उसने पूछा है चर्पिंग ऑफ द साउंड। चर्पिंग ऑफ द साउंड किस पे डिसाइड होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है। अभी अभी टीचर ने क्या सिखाया था? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। जितना टाइम पीरियड डाउन होएगा उतना फ्रीक्वेंसी अप होता है, बिकॉज दिस इज इन द डिनोमिनेटर साइड एंड दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वालिटी ऑन द न्यूमरेटर साइड। तो इसका मतलब बच्चा बोलेगा सर फर्स्ट वाले केस में टाइम पीरियड ज्यादा है, इफ यू कंपेयर द फ्रीक्वेंसीज ऑन बोथ साइड दिस साइन विल चेंज, इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ऐसा रिलेशन होता है, अगर एक चीज घटती है तो दूसरी बढ़ती है। तो यहां से बच्चे आसानी से अंदाजा लगाएंगे कि सर एफ डैश वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और चर्पिंग ऑफ साउंड में फ्रीक्वेंसी हायर होती है। तो इसका मतलब हो गया कि जो लोअर वाला चीज है वो वाली डायग्राम ये वाली चर्पिंग ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करती है। गॉट इट? कहां तक देखना होता है टाइम पीरियड? आपने एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसका भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ, चाहे लंबा चौड़ा दिखा रखा हो, आपने एक ही क्रस्ट और एक ही ट्रफ को देखना होता है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ तक जितना टाइम ड्यूरेशन निकल गया उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये था बेटे हमारा असाइनमेंट 1। जिन बच्चों को फर्स्ट असाइनमेंट समझ आ चुका पूरा, वो एक बार टीचर को इंडिकेशन देंगे ऐसे करके, दोनों थम्स या ऐसे करके दो, वेव योर बोथ हैंड्स। मेरे को पता लगना चाहिए बेटे, देखा ऐसे एक तरह से ऐसे कर दो। तो मैं देखता हूँ कि 8th सिर्फ एक बच्चा है, लास्ट में पता नहीं सुन रहा है कि नहीं। 8th सी में ना सिर्फ 2 बच्चे हैं आगे फ्रंट बेंच पे बैठी हैं गर्ल्स, उनको छोड़कर बाकी सबको समझ आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब उनको पूछना चाहिए था, या बाद में वाइब्रेट करने लग गए बच्चे। नाउ मूव टू द सेकंड असाइनमेंट, हरी अप प्लीज। सेकंड असाइनमेंट, शाबाश, इसमें आगे बढ़ेंगे पता। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड योरसेल्फ। कंपटीशन करते हैं दोनों क्लासों में, दोनों क्लासों में पूरा टेबल बनाते हैं लोग। 8th ए, 8th बी एंड सी, देखते हैं कौन विनर है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज योर ऑप्शन, चूज योर ऑप्शन। A bell is ringing in the airtight glass jar. As air is slowly pumped out, the sound of the bell becomes fainter and eventually inaudible. What is the most logical reason behind it out of the given options? Shabash. First option है bell stops vibrating in the vacuum. Second, there is no medium in the sound to travel. Third, glass absorbs sound completely. Fourth, jar gets too cold for sound to travel. आप अपना फिंगर खड़ा करो ना, अगर आपका ऑप्शन 2 है या 3 है, सपोज आपका ऑप्शन 3 है तो 3 फिंगर्स। ए सेक्शन का मेरे को पता लग गया, बी सेक्शन का पता लग गया। आई एम सॉरी टू से टू द सेक्शन ए सेक्शन का रॉन्ग हो गया बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ए का रॉन्ग हो गया और सी का विनर हो गया। क्योंकि अगर हमने वैक्यूम कर दिया ग्लास जार में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेल ने अंदर जो इलेक्ट्रिक बेल है उसने वाइब्रेट करना बंद कर दिया। वाइब्रेट तो वो बिजली की तार से करती है। हाँ, देयर इज नो मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रेवल। वैक्यूम, जब वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो ग्लास जार के अंदर हवा भी नहीं रहा। अब टीचर ने आपको क्या बोला? साउंड इज द मैकेनिकल वेव, इलास्टिक वेव, पिछले लेक्चर में बताया था। दैट मीन्स it necessarily requires the presence of medium for its propagation. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ऑप्शन हुआ।
तो एट्थ ए सेक्शन जो है एक नंबर से लीड कर रहा है, सॉरी एट्थ बी सेक्शन। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं आप क्या करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस ए साउंड वेव? ए साइलेंसर फिक्स्ड, गन फायर्ड, a bell ringing underwater, a hammer hitting a block of rubber, an explosion on the moon. What is your option? बी सेक्शन का पता लग गया मेरे को। ए सेक्शन का क्या ऑप्शन है? रेज योर फिंगर। ए सेक्शन का ज्यादा बच्चे हाथ खड़ा करो वरना मैं मानूंगा नहीं। ए सेक्शन पता लग गया बेटे। दोनों के दोनों ऑप्शन आप बच्चे कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन था और क्वेश्चन नंबर 2 का लेट मी टेल यू डी ऑप्शन। बिल्कुल सही, दोनों सही। तो ड्रा हो गया मैच। अभी भी बी टीम विनर जा रही है, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट, लेट्स सी व्हाट इज योर चॉइस। Out of the following four graphs, which sound waves represent the higher frequency? ज्यादा बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी किसकी है? वाह, बी सेक्शन इतनी क्विक है, वो ए भी क्विक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंड दोनों के दोनों सेक्शंस मेरे को कह रहे हैं कि सर इसका ए ऑप्शन चूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन आपने सही चूज करा बेटे। तो अभी मैच ड्रा है, क्योंकि ए ऑप्शन के अंदर फिगर में देखो आप, ए ऑप्शन में टाइम पीरियड बहुत स्लो कम दिया हुआ है। जिसका टाइम पीरियड कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी हायर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपटीशन इज स्टिल ऑन। बी टीम 1 पॉइंट से लीड कर रही है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो साउंड, टेम्परेचर किसका? मीडियम का, जिसमें से साउंड जा रही है, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा? हाउ विल इट इंपैक्ट दी फ्रीक्वेंसी? शाबाश, पिक अप योर चोजन। बी सेक्शन का मेरे को पता लग गया। ओके, बी सेक्शन मेरे को पता लग गया क्या कह रही है। ए सेक्शन नॉट पार्टिसिपेटिंग। ए सेक्शन, ए सेक्शन, ओके लेट मी टेल यू, दोनों के दोनों सेक्शन सी ऑप्शन कह रहे हैं और वो सही भी है। तो आप बच्चों ने याद रखना है ध्यान से, सर टेम्परेचर बढ़ने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। बट एक बात याद रखना सभी बच्चों ने, टेम्परेचर के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, अगर वेलोसिटी पूछ लेता कि साउंड तेजी से जाएगी, यस वो इंक्रीज हो जाएगी। नोट कर लो ये बेटे, ये दोनों नोट कर लो। टेम्परेचर इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेलोसिटी इन द एयर ऑफ साउंड इंक्रीजेस। वेलोसिटी अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता तो इंक्रीजेस लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 पे अभी भी ए टीम लैग कर रही है। Question number 5. A tuning fork vibrates at 152 hertz. What is the time period? शाबाश, जल्दी करो, पेन से सॉल्व करना पड़ेगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 में यू आर गिवन फ्रीक्वेंसी 512 hertz and you have been asked the time period. What is your choice? हरिया, देखते हैं इसमें कौन जीतता है। ए सेक्शन ने तो अपना आंसर मोर और लेस दे ही दिया। ए सेक्शन ने अपना आंसर दे दिया। ओके, बाकियों को देखना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी से बी और सी भी बताओ। बी और सी, शाबाश। व्हाट इज योर आंसर? बी और सी। हाँ जी, बी और सी का क्या ऑप्शन है?
नहीं बता पा रहे, ए ऑप्शन ने, ए सेक्शन ने इसका ए ऑप्शन बताया जो कि सही है, ये नहीं बता सके, तो मैच बराबर आ गया, बिल्कुल सही। तो टाइम पीरियड इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यू हैव टू पुट इट बिकम्स 1/512, जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो बेटे इट बिकम्स 0.0015195 सेकेंड। तो आपको पता है कि ये फार्मूला तो बी सेक्शन को भी पता था, लेकिन बिकॉज ऑफ पुअर एबिलिटी या कंपैरेटिवली लेसर एबिलिटी टू डू द डिवीजन, डिवीजन में आपने टाइम लगा दिया बच्चे, आप इसलिए अपने आंसर गलत बता दिया, तो मैच बराबर हो गया बिल्कुल। हैव यू सीन, हियर रॉन्ग, हियर रॉन्ग। अब है असली कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू, व्हाई डू वी not hear echoes in the small room, echoes small room में क्यों नहीं सुनाई देती? What is your option? A ऑप्शन में बोल रहा है साउंड इज अब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली, बी में बोल रहा है इको रिक्वायर ए मिनिमम डिस्टेंस टू बी हर्ड, में कह रहा है साउंड ट्रेवल्स स्लोअर, डी में बोल रहा है अब हमारे कान इको को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे छोटे कमरे में। बी ऑप्शन ने आंसर दे दिया बिल्कुल, ए ऑप्शन। ओके, लेट मी टेल, लेट मी डाउन 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 डाउन। जो तो ए क्लास है वो तो इसका सी ऑप्शन बता दे, लेकिन जो बी क्लास है, बी क्लास, वो इसका बी ऑप्शन बता रही है और बी ही सही है। ए का गलत हो गया, बी फिर से आगे आगे निकल गया, बिल्कुल सही बच्चे। अब मैं अपने बच्चों को बता भी दूं, इको, लेट्स टॉक अबाउट इको। लिसन यार बेटे, योर अटेंशन, if the person is standing here and there is a wall in front of it, wall of the room, this is your room, okay, तो gap between wall and the person, ये अब बोलेगा, उसी की आवाज दीवार से टकरा के इसको दोबारा सुनाई देगी, अपनी ही आवाज को दोबारा, इट इज नोन एज इको, इको। और आपको बताना चाहूंगा द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर, स्पीकर कम लिसनर, स्पीकर एंड लिसनर एंड द ऑब्स्टेकल, जहां से ये आवाज टकरा कर आई, ऑब्स्टेकल दीवार को बोल रहा है, दिस गैप इज डी and this gap d should be greater than or more than, it should be at least 17 meter, it should be either equal to 17 meter or more than 17 meter। लिख लो, ये कॉपी में नोट कर लो, कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देती है, लिख लो। सो आपका 6th बी सेक्शन, 6th का बी ऑप्शन होएगा। और अभी कौन सा क्लास विनर जा रहा है, बताओ कौन सा जा रहा है? बी क्लास, बी क्लास फिर से लीड कर दिया जा रहा है, क्योंकि बी सेक्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत जवाब दिया, जबकि ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन गलत। चलो कंपटीशन ऑन है। 7th क्वेश्चन, why is sound louder in the room where hard surfaces compared to one with the carpet and room? कारपेट जिसमें लगे हो और उसमें कर्टन लगे हों, उस कमरे में आवाज धीमी सुनाई देती है बजाय उसके जिसमें ग्रेनाइट वगैरह लगे होते हैं, हार्ड सबस्टेंस। इसका ऑप्शन कौन सा चूज करोगे? शाबाश, मेरे को 8th बी का पता लग गया। ओके, डाउन 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 डाउन, 8th ए भी वही बता रहे हैं। दोनों सेक्शन इसमें बी ऑप्शन कह रहे हैं। लेट मी सी क्या कह रहे। ए ऑप्शन, हार्ड सर्फेसिस एम्पलीफाई साउंड, गलत। हार्ड सरफेस साउंड को टकरा के वापिस तो भेज सकते हैं, लेकिन एम्पलीफाई का मतलब होता है ऊंचा करना, और ज्यादा ऊंचा करना, नो। कारपेट्स एंड सी ऑप्शन, कारपेट कर्टन्स रिफ्लेक्ट साउंड, करती हैं थोड़ी बहुत। सॉफ्ट मटेरियल इंक्रीजेस द साउंड स्पीड, सॉरी, सॉफ्ट मटेरियल एब्जॉर्ब द साउंड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही है, दोनों क्लासें इक्वल परफॉर्म करेंगी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, हरी अप, नहीं 8 सॉरी,
a vibrating body must oscillate at least how many times per second to produce that sound is audible to the average human ear? शाबाश। कितनी बार उसको वाइब्रेट करना चाहिए कि वाइब्रेटिंग बॉडी को कम से कम कि आवाज इंसान को सुनाई दे? नहीं सॉरी, बी सेक्शन का मेरे को कितनी फिंगर्स हैं? ओके, बी सेक्शन का पता लगता है, ए सेक्शन का, ए सेक्शन का भी पता लगेगा। लेट मी टेल यू, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। दोनों का सही हुआ। एंड नॉलेज अभी इंक्रीज करनी होगी, नॉलेज। सभी बच्चे याद रखो, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। एक इंसान जिसकी सेहत अच्छी है और वो पूरा यंग हो चुका है, उसकी रेंज किसी बच्चे को याद है कहां से कहां तक होती है? कितनी फ्रीक्वेंसी? 20,000 hertz. यस, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 लिखना है अगर इधर, तो आपको यहाँ पर किलो लगाना पड़ेगा। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, याद रहे। अगर दोनों तरफ 20 लिखना है तो एक तरफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज लिखनी है, एक तरफ किलो हर्ट्ज। लेकिन और भी समझदारी है, अगर आप 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज लिख दोगे तब दोनों तरफ सेम फ्रीक्वेंसी है। शाबाश, कंपटीशन ऑन है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट मी सी कौन सी क्लास विनर होती है। On a stormy day, why the lightning seen before the thunder is heard? बादलों वाले दिन में लाइट पहले दिखती है, आवाज बाद में सुनती है जब बादल गड़गड़ाते हैं। दोनों क्लासें कह रही हैं सी ऑप्शन। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, सी ऑप्शन में। सो लाइटनिंग इज सीन बिफोर द सन थंडर हर्ड, बिल्कुल से। क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों सही। अभी तक कंपटीशन ऑन है बेटे, और मैं सभी बच्चे इसकी वैल्यू भी नोट करो भाई, वैल्यू नोट करो बेटे एक बार। सभी बच्चे वैल्यू नोट करेंगे। किसकी नोट करेंगे? लाइट वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी की। शाबाश, सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए, पेपर में आपसे पूछ सकता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light in air, everybody, 3 into 10 raised to power 8 meter per second। और दूसरा velocity of sound in air at normal temperature pressure, normal temperature pressure। शाबाश, इसकी वैल्यू भी याद कर लो। 346 एनसीईआरटी बुक के मुताबिक। सभी बच्चे नोट कर लो, ये दोनों वैल्यूज डायरेक्ट पेपर में पूछी जा सकती है। तो आपने देखा लाइट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के मुकाबले एयर के अंदर ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसलिए लाइटनिंग जब क्लाउड्स में थंडर होगी तो लाइटनिंग जल्दी दिखाई देगी हमें और आवाज बाद में सुनेगी जमीन पे। हालांकि उनके प्रोड्यूस होने की मोमेंट जब वो पैदा होती हैं, लाइटनिंग और थंडर सेम मोमेंट पर पैदा होती है, एक ही मौके पर। ओके बेटे, बाकी के क्वेश्चंस हम केस स्टडी से नेक्स्ट अगली बार करेंगे और आप लोगों ने खुद से भी पढ़कर आए, राइट। आज का लेक्चर समझ आया तो दोनों हैंड्स वेव करके दिखाओ, हरी अप, अगर समझ आया तो आज का मैं विनर डिक्लेयर करता हूं बी सेक्शन। बी सेक्शन 1 पॉइंट से विनर है। शाबाश, वेरी गुड।
and Commerce, please take out module. Open your register also. Note should be in front of you. Okay, module should be in front of you and write down today's date and make rough column quickly. मैथ्स का कोई भी काम आप बिना रफ वर्क के नहीं स्टार्ट करोगे. You have to apply your thought process in the rough work. माइंड में जो चीज भी आती है क्विकली उसको रफ वर्क में देखी अपने आप उसको आप आइडिया ले सकते हो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. ओके बेटा, डू यू फाइंड दिस चैप्टर इजी? आगे आगे जब और चैप्टर्स करोगे ना आप, then you will find this is the easiest chapter in maths book. Okay, and because you have done this chapter in 7th also. Yes. Okay, and who know कि same rules are applied in 8th also. Same rule which you read in 7th class. इनके जो laws थे, laws वो सारे के सारे वो 7th और 8th दोनों में same है. Do you know it? Raise your hand. Raise your hand who know कि same rule apply हो रहे हैं, कोई difference नहीं है. Yes, very good. What is the difference then? तो ये दोबारा चैप्टर क्रिएट में क्यों आया है? What do you feel कि क्या डिफरेंस आपको लगा, क्या नया है, कुछ समथिंग न्यू इन दिस चैप्टर जो उसको डिफरेंशिएट कर रहा है कि 7th में ये था, अभी 8th में थोड़ी सी ये चेंज आई है. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज टेकन अगेन. एनीबॉडी? किसी को थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ ये व्हाट इज द डिफरेंट थिंग यू आर लर्निंग इन इट? Laws are same, no doubt. You know when you multiply तो कौन सा लॉ लगता है, डिवाइड करते हो तो कौन सा लॉ लगता है, पावर 0 होती है किसी भी की पावर जब 0 होती है तो कौन सा लॉ लगता है, क्या बोलते हैं उसको. ये सारे रूल आपके यूज होते हैं. फिर यू रीड अबाउट पावर ऑफ अ पावर, x रेज टू पावर m रेज टू पावर n. थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी बिकॉज आई वांट टू क्लैरिफाई योर थिंग्स. सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि ये सब होने वाला है आगे क्वेश्चंस में. क्वेश्चंस तो आप कर लोगे मुझे पता. एनी चाइल्ड हु इज थिंकिंग इन माइंड कि ये समथिंग न्यू है, 8th क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट हमने ये पढ़ा 7th से, क्या चीज है वो? ये सारी चीजें आपने पढ़ी कि सेम बेस होगा. अगर x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n है तो आप क्या करते हो, x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n है तो आप क्या करते हो, x रेज टू पावर 0 है तो क्या होता है, अगर x रेज टू पावर mn है तो क्या होता है. ये सारा पढ़ा है ना आपने, सेम लॉज, राइट? कौन लॉ विच आई एम फॉरगेटिंग, कौन सा लॉ मैंने नहीं लिखा इसमें, प्लीज स्टैंड एंड टेल मी क्विकली. कौन सा लॉ अभी एक और है? यस बेटा, 8th सेक्शन. यस, जल्दी से बता दो. फर्स्ट चाइल्ड जिनके पास माइक है, 5th वाला. एक और पावर लो, x की पावर नेगेटिव पावर लो, negative power. Okay, x raised to power this, then what it should be? 1 raised to 1 over x. Yes, very good, very good. ठीक बोल रहे हो आप. We speak confidently. 1 upon x. 1 upon x. कंप्लीट करो इसको, कंप्लीट करो. वेरी गुड. अभी थोड़ा सा मिसिंग है. raised to power 1 raised to power n. Raised to power n. Very good. Very good. I must tell you बेटा one thing, please remember. साइंस में आप क्वेश्चंस को लर्न करते हो, ऑफ कोर्स आप मुंह से उसको बोलते हो, लर्न करते हो. हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, एसएसटी में जितने भी आप क्वेश्चंस करते हो, इंग्लिश में करते हो, हिंदी में करते हो, ऑल द सब्जेक्ट्स आर फॉर लर्निंग. ठीक है, आप किसी को सुनाते हो या लिख के देखते हो. सिमिलरली इन मैथ्स ऑल्सो you think in mind and you write by your hand. Okay, make it a habit to speak also. Make it a habit. जितना बोलोगे उतना ज्यादा आपका मिस्टेक का जो लेवल है वो कम होता जाए. You will make less mistakes when you will speak and write. सोच तो रही हो, ऑफ कोर्स माइंड आपका चल रहा है. You are doing maths now. हाथ भी चलेगा बिकॉज आपको क्वेश्चन परफॉर्म करना है. Okay, use your lips also, use your lip sync quietly.
नॉट बाय मेकिंग नॉइज, थोड़ा ऊंचा ना, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, लिपसिंग करो मुंह से, उससे क्या होगा? अभी अभी यू स्पोक टू मी 1/x⁻m, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। एक और फॉर्मूला जो आपने 7th में भी किया था, वन थिंग मोर, वेरी गुड, हु इज कमिंग टू टेल मी? ओके, हाँ जी, कोई बता रहा है, किसी के माइंड में आ रहा है? यू आर टेलिंग यस यस, कम आ जाओ बेटे, ये सेक्शन, वेरी गुड, जो हाथ खड़े कर रहे हैं बहुत। Power of power law. पावर को मैंने लिख दिया डी में, वी रोट हियर x रेज टू पावर mn, हमने लिख दिया यहाँ पे 1 आ गया, x रेज टू पावर m माइनस n आ गया, यहाँ पे x रेज टू पावर m प्लस n आ गया। ठीक है, ये सारे आपने 7th में पढ़े। वन थिंग मोर, 7th में एक और चीज पढ़ी थी आपने, वेरी गुड, Power of product law. पावर ऑफ Product law. प्रोडक्ट। ओके, कोई एग्जांपल दो। Yes, that girl can keep standing. मैं अभी पूछती हूँ आपसे, आपकी टर्न आएगी, वेट हियर ओनली। ओके, यू सेड बेटा, इट्स ओके, बैठो आप ध्यान से सुनो। फ्रॉम बी सेक्शन, बी एंड सी कंबाइंड जो बचे। यस बेटा, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? And when bases are different and powers are same, या प्लीज टेल मी, व्हाट शुड आई राइट हियर देन? x raised to the 9 ओके, and y raised to the m. y raised to power m. Bases are different, powers is same. What do you do then? क्या करते हो इसमें? When there is right sign, We will product them first. सबसे पहले हम इनको बेसिस को प्रोडक्ट करना है और पावर जो है वो एक ही बार लिखी जाएगी। Is it so? किया था ये आपसे 7th में सबने? Very good. Please sit down बेटा. Same way we did for division also, right? जल्दी से इसको लिख लो फटाफट, क्विकली मेक अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अभी क्वेश्चन बड़ी फास्ट होने वाले हैं आपके सारे, जिनको आते हैं वो खुद लिखो और फिर मैच करो बोर्ड से, राइटली और नॉट। जो माइंड में आपके आ रहे हैं लिस्ट बनाओ और बोर्ड से फटाफट से चेक कर लो, क्योंकि आपने ये किया हुआ है सारा। क्योंकि आप लिखा होगा आपके सामने, तो आपका क्वेश्चन बड़ी फास्ट होने वाला है। वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चंस आपको आते हैं, ओके, दैट यू कैन, आई एम लीविंग दोस क्वेश्चंस, आपको मैं आंसर बताती जाऊंगी साथ साथ। मीनिंग वी विल बी डूइंग नाउ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल। वन मोर आई एम राइटिंग, किसी के माइंड में आ रहा है एक और? Write down multiplicative inverse. Most important, put a star over here. Multiplicative inverse. और साथ में इसके लिख लो रेसिप्रोकल। हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, ओके, which you are using maximum in your 8th class. Multiplicative inverse बहुत बार maximum questions में आपका ये word बार बार यूज हो रहा है, जो ट्रबल करता है, which make you think, आप पॉज कर जाते हो। सब बच्चे में देखे वो दे पॉज एट दैट टाइम कि अरे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, सोचो इसके बारे में। एक सेकंड के लिए आपका हाथ रुक जाता है कि अरे सोचना पड़ता है बहुत। Please remember, multiplicative inverse is the reciprocal of any number. Okay, number क्या हुआ? Suppose कर लो x raised to power m है, तो उसका reciprocal है x raised to power 1 by this, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। अब आपने 8th में ये पढ़ा है कि इसका रेसिप्रोकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव पावर से। This thing is new for you in 8th class. Rest all is same. Please remember,
Okay. Write down each and every word what is written on the board. Note it down. ओके आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का आता है तो आप क्या करोगे, उसकी नेगेटिव पावर ले लोगे. ओके दैट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर. अगर आपको थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है तो पहले उसको रिवर्स करो, रेसिप्रोकल करो, फिर उसको नेगेटिव पावर में लेके आओ, देन ऑल्सो इट इज फाइन. तभी मैंने ये तीनों स्टेप लिखे हैं. आपको पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव पावर आई कहां से है. इसमें कुछ ऐसे लर्न नहीं करना है, लॉजिक है. देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट कि व्हाई दिस हैज कम. ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ. प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू. आपके पास दोनों मॉड्यूल हैं. क्विकली विल बी टचिंग दोस क्वेश्चंस. ठीक है, जो जो डिफिकल्ट है थोड़ी थोड़ी और आंसर डिस्कस करते जाएंगे. ओके फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू. प्लीज रीड इन द मॉड्यूल. मॉड्यूल है सबके पास बेटा? No. वाई मॉड्यूल क्यों नहीं है? Okay, then write down the questions. It's okay. Don't worry. I'm writing the question on board. Have you noted this all? We are going to use these all now. Okay? अगर मॉड्यूल नहीं है तो it is okay. Please copy down the question. छोटे छोटे questions है ये. Okay, first question. I'm doing from your module only. You can do it later. Okay. Which of these? First question is आपकी MCQ questions है. Okay, take it quickly. I'm waiting for you. थोड़ा जल्दी से एक दूसरे को दे दो प्लीज. Yes. ये सेक्शन को मिल रहे हैं मॉड्यूल्स. स्टार्ट रीडिंग. जिनको मिल चुका है रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. ए सेक्शन को मिल चुका हुआ है. ओके यस आई कैन सी हैंड्स. लेट मी कॉल द नेम. बी सेक्शन विराज. Absent. Summer. B section. हाँ जी बेटे, कैन यू टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन. 3 expressions are shown below. 3 आपके पास नंबर लिखे हुए पावर की फॉर्म में. आपने आंसर इसके रीड करने हैं कि किसके लिए ये प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है. ऑप्शन ए. वाई? रीजन भी बताओ साथ में क्यों. नहीं दैट इज ओके. फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि ओनली 10 into 10 की पावर 2 raised to 4 होल्ड्स बिकॉज दिस इज पॉजिटिव इंटीजर. क्या ये फॉर्मूला सिर्फ आपका ये जो फॉर्मूला है, ये जो लॉ है, क्या वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए चलते हैं? क्या ये सिर्फ एम और एन पॉजिटिव होने चाहिए तभी ये लॉ अप्लाई होगा? अगर यहाँ पे नेगेटिव हो, सपोज आपके पास -1 यहाँ है और 2 यहाँ है, क्या ये लॉ अप्लाई नहीं होगा? यस. थिंक मोर बेटा, थोड़ा सा और सोचो और ऑप्शंस पढ़ो. फर्स्ट वाला लग रहा है कि ट्रू होगा बट वो सबके लिए अप्लाई नहीं हो रहा है. ओके दे आर आस्किंग क्या वो सबके लिए रूल अप्लाई हो रहा है क्या? ये आपको ये चेक कर. ओके बैठ के सोचो. बैठो बेटा, इट्स ओके. थिंक मोर. सारी ऑप्शंस को रीड किया करो. जब आंसर देना होता है ना, रीड ऑल द ऑप्शंस. सी सेक्शन सेकंड लास्ट बेंच या पीछे से थर्ड बेंच. यस. थिंक इन माइंड. किसी में नेगेटिव पावर है, किसी में पॉजिटिव पावर है, तो क्या वो नेगेटिव का डिफरेंट रूल अप्लाई होगा या फिर सेम ही होगा? सेम होगा. देन व्हाट शुड बी द ऑप्शन? सी ऑप्शन. वेरी गुड. हु अग्री के सी ऑप्शन होनी चाहिए? रेज योर हैंड प्लीज. बैठो बेटा. विदाउट एनी डाउट कि सी ऑप्शन होनी चाहिए. ओके सो आंसर इज सी ऑप्शन, क्योंकि आपके रूल जो है वो सबके लिए सेम लगेंगे, वेदर इट इज नेगेटिव या फिर एम और एन दोनों नेगेटिव है या फिर एक नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है, सेम लॉ विल बी अप्लाइड. ओके किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके सेकेंड क्वेश्चन इज which of these is the multiplicative inverse of the expression? Think in mind.
फोकस ऑन दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब हम अभी रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। जल्दी से लिख के करो इसको, स्टार्ट राइटिंग, सोचने से नहीं होगा, मूव योर पेन, वेरी गुड। कई बच्चे आपकी भी पेन नहीं चला रहे हैं, आई कैन सी विदाउट राइटिंग यू कैन नॉट फाइंड द आंसर। दो दो स्टेप लिखनी है सब में, ओके। एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू, it is 4a raised to power minus 19 upon 36a raised to power minus 13, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यू कैन नॉट फाइंड इट डायरेक्टली, सॉल्व करो इसको, फिर इसका आंसर निकालो। ऑप्शंस को छोड़ दो, अभी उसका आंसर ऑप्शंस मत देखो ABCD क्या है, वो कंफ्यूज करेगा आपको। अप्लाई योर नॉलेज इन द क्वेश्चन फर्स्ट, की अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे परफॉर्म करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाए तो। ई सेक्शन बेटा, रवनी, ये आज आगे आपने क्वेश्चन तो नहीं किया होगा अभी, लेकिन थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। टेल मी व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस? दिस इज एन एक्सप्रेशन, समथिंग इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हाँ जी बेटी बताओ। मैम 5 raised to power 7। 5 raised to power, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो आप मेरे को? वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड। मैम 1/9a raised to power minus 6। Okay, finding it as 1/9a raised to power 9a raised to power minus 6. You found like this? ये आ रहा है आपका? मैम यस। Okay, so what should be the answer then? ऑप्शन क्या होने चाहिए? अब ये तो आपका आंसर आया, किस किस का ये आंसर निकला? पहले तो सबको ये आना चाहिए 1/9 raised to power a raised to power 6। किस किस का आ रहा है? हाथ खड़ा करो। लॉ अप्लाई किया आपने? वेरी गुड बेटा। हाँ जी बेटी आगे बताओ। व्हाट शुड बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? जो आपने आंसर निकाला इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में अभी सोचो। वेरी गुड। अब बताओ मेरे को क्या आएगा इसका? मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 9a पावर, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे आप। जो भी आंसर आपने निकाला उसका रेसिप्रोकल करना। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। लेट मी डू इट ओवर हियर। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है हाउ टू डू इट, आई एम डूइंग इट ओवर हियर कि कैसे सॉल्व किया आपने। a रेज़ टू पावर -19, नीचे भी हमारे पास -13 था, ओके तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके और यहाँ पे जो हमारे पास 36 था, वी ब्रोक इट लाइक दिस, हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, 9 4 36। ठीक है, आपको वे भी पता होना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का आता है तो। ओके सो यू कैन सी वेरी वेल। ओके यहाँ पे आपके पास 4 रेज़ टू पावर 0 आ रहा है, 3 रेज़ टू पावर -2 आ रहा है, देन a रेज़ टू पावर -6 आ, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो। आर यू एबल टू डू इट? किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आया प्लीज आस्क मी। इसमें हमने लॉ अप्लाई किया, ठीक है, डिनोमिनेटर वाली पावर को ऊपर जाके नेगेटिव किया, हमने ब्रैकेट खोली तो आपके पास आ गया a रेज़ टू पावर -6। हाथ खड़ा करो किसकी यहां तक आ चुका है, हु हैव अंडरस्टूड? एक्सीलेंट बेटा। सो इट विल बी 1/9 e रेज़ टू पावर 6 जो उसने निकाला था। ओके कई बच्चे इसको कैसे कर लेंगे, ये दे कैन राइट इट एज 9 यू कैन नॉट डू बिकॉज 3 रेज़ टू पावर आपकी -2 है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, कई बच्चे इसको लिख रहे होंगे 3 रेज़ टू पावर -2 e रेज़ टू पावर -6, ओके एंड व्हेन यू डू द रेसिप्रोकल, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/3 रेज़ टू 2 a रेज़ टू पावर 6। इसका तो यही मतलब हुआ ना, इसका तो मतलब यही है बिकॉज ये नेगेटिव है, पावर नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बना लिया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा ये, ठीक है, आप जैसे मर्जी करो इसको, वट एवर वे यू आर अप्लाइंग यू कैन डू इट। अंडरस्टैंड एवरी स्टेप कि यहाँ हमने लॉ अप्लाई किया, फिर यहाँ लॉ अप्लाई किया,
काटा हमने किसी को नहीं है, वी हैव नॉट कट द नंबर्स। 4 and 4 कई बच्चे काट देते हैं आपस में, आपको काटना नहीं है। प्लीज रिमेंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पावर को 0 बनाना है। ठीक है, 3 की पावर -2 आया क्योंकि यहाँ पे 9 था आपके पास। इसको जब हम ऊपर लेके गए 3 - 2 आया, k⁻⁻6 आया। जब हमने इसको खोला ये बन गया, इसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में लिख लिया, पॉजिटिव पावर बना के लिखा, और फिर हमने इसका रेसिप्रोकल निकाला तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आपकी ऑप्शन कौन सी आ रही है इसमें? बी ऑप्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज टेक केयर बेटा। ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, हमने कैसे सॉल्व किया है इसको। वेरी गुड, कॉपी डाउन। कोई डाउट है खड़े होकर पूछो क्विकली, कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ आया? एट में यही आपका है कि आपको रिवर्स किया, फिर आपने नेगेटिव पावर पे लेके आए इसको। दिस इज द फाइनल आंसर, चाहे आप किसी भी वे से करो, ये आपका 9/8 विल बी योर फाइनल आंसर। आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एनी डाउट? हाँ जी, बोलो बोलो, यस। चलो हाथ खड़े कर दो अब जिनको समझ आ गया पूरा कंप्लीटली, हाउ हाउ वी वेंट। चलो वेरी गुड, चलो अगला क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5⁻⁻7। मैं आई विल बी टचिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्योंकि ये चीज आपको मुश्किल लगती है 8th क्लास में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5⁻⁻7। टेक केयर, सबसे पहले हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है जो आपने 7th क्लास में देखा हुआ था। पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दो उसको सबसे पहले, फिर इसका रेसिप्रोकल निकालो। सी सेक्शन तनवीर। हाँ जी बेटी, प्लीज टेल मी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। 5⁻7, रेसिप्रोकल विल बी 5⁻7 which is आपकी बी ऑप्शन। गुड बेटी, अगर आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुश्किल लगता है, प्लीज उसको नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, पॉजिटिव से उसका रेसिप्रोकल ले। ओके, फिर आपकी बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। सिर्फ एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कि हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, पॉजिटिव से हमने उसका रेसिप्रोकल निकाला। क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा है, मुंह से हम रेसिप्रोकल बोल रहे हैं क्योंकि हमें रेसिप्रोकल ज्यादा इजी लगेगा बोलने में, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आपको कोई पता है कि उसको हमने उल्टा करके लिखना है ना। ठीक है बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन इज सी। आई एम टेलिंग द जो इजी आंसर्स है, मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ, आप लिख लो इसको। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वी विल बी डिस्कसिंग इट हियर। फोर्थ क्वेश्चन की सी ऑप्शन है, प्लीज ट्राई एट होम। फिफ्थ क्वेश्चन की बी ऑप्शन है। ठीक है, आई नो यू कैन डू इट, सीधा लॉ अप्लाई हो रहे हैं सिंपल, एंड आप इसको कर पाओगे। प्लीज डू एट होम। ठीक है, ये स्टार वाले क्वेश्चंस आपने घर पे खुद रिवाइज करने हैं और आंसर मैच करना है। बाई चांस कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। ठीक है, दिस इज सिंपल फॉर यू। आफ्टर दैट देयर आर असर्शन रीजन बेटा। लॉज आपको सारे पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आती है, साइंटिफिक नोटेशन आपको आती है। सो वी आर गोइंग टू assertion रीजन के आई विल बी टेलिंग यू आंसर्स। ठीक है, क्विकली आंसर्स लिख लो इसके सो दैट यू कैन रिवाइज लेटर। फर्स्ट की ऑप्शन बी है क्योंकि मैं टिपिकल क्वेश्चन अभी रिवाइज करना चाहती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन फिर से बी ऑप्शन है, आंसर्स लिख लो इसके। थर्ड क्वेश्चन की ए ऑप्शन है। लॉज आपको आते हैं, नॉलेज है आपको चैप्टर के बारे में, यू विल बी एबल टू डू इट क्विकली। ओके, ट्राई एट होम। ओके, जल्दी से मॉड्यूल 2 के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। वेरी गुड, मॉड्यूल 2
भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपकी लॉ के बेस पे हम क्विकली डिसाइड कर लेते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 1 इज सी ऑप्शन, एमसीक्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट एमसीक्यू। नोटबुक में आंसर्स लिख रहे हैं इनके। आपको पता है कि पावर क्या होती है, बेस क्या होता है, पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, यू नो इट। प्लीज इसको लिख लो बेटा, पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट आल्सो। डू यू नो पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं? रेज योर हैंड बेटा, डू यू नो? हाँ, 8th क्लास में आपको पता होना चाहिए, 7th में भी ऑलरेडी पढ़ के आए हो। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। व्हेन दे टॉक अबाउट एक्सपोनेंट, क्विकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम उसके पावर को देख रहे हैं, बेस को नहीं देख। ओके, सो इट इज सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1, सी ऑप्शन। Second question, the value of 1 by 4 raised to power minus 2. Let us discuss it. Quickly इसको रफ में करके मेरे को बताओ क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 by 4 raised to power minus 2. Okay. Okay, hands down. I want to ask you, can you write it like this? क्या इसको 4 into 4 लिख पाओगे आप यहाँ पे? Is it possible? कौन कह रही है कि नहीं लिख सकते? रेज योर हैंड। वेरी गुड, हाथ खड़ा करो जो कह रहे हैं कि नेगेटिव पावर है तो हम इसको 2 बार नहीं लिख सकते यहाँ पे एट प्रेजेंट। वेरी गुड, हाथ खड़ा करो। मुझे पता है कि आपका आंसर नो है, आप डर रहे हो थोड़ा सा, यू आर थिंकिंग ऑफ इट कि अभी क्या करें। आपको ये सिखाया गया था बेटा कि 4 raised to power 2 जो होता है 4 into 4 होता है, ये तो पता ही है। क्या आपको ये सिखाया गया था कि नेगेटिव पावर हो तो भी उसको 2 बार लिखना है? ये नो वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं ना? और ए सेक्शन में से क्या डाउट हो रहा है आपको बेटा? बी और सी ने तो बता दिया मुझे। प्लीज टेक केयर, ए सेक्शन ऑल्सो। जब भी हमारे पास नेगेटिव पावर होती है हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। नेगेटिव पावर को सबसे पहले हम वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, प्लीज टेक केयर। ये लिखना गलत है यहाँ पे। अगर गलत है तो फिर क्या करें? अभी क्या करना चाहिए फिर हमें? सबसे पहले कहा क्या करें, इसको थोड़ा नॉर्मल वे में लिखना पड़ेगा ना। अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो क्या करें? व्हाट शुड वी डू? हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे। कैन वी राइट इट लाइक दिस? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस, यू नो इट। पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। नीचे नेगेटिव है तो उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले आओ। पॉजिटिव बनाने के बाद वी कैन सॉल्व इट नाउ, राइट? और फिर आपका आंसर आएगा, इट विल बी योर विच ऑप्शन? जल्दी से बता दो। ए ऑप्शन 16। ओके, थर्ड क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपका इजी है, राइट डाउन द आंसर एंड सॉल्व एट होम। दिस इज सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन जो मुझे पता है आपको आ गए हैं, you can revise at home. Fourth question, it is B option. Just किया हमने same question. Please mark it. Fifth question आपका है A option. Question number 5, it is B. Scientific notation you know already. सबको अच्छे से आता है। You can see कहाँ पे पावर जो है वो 10 की पावर कितनी लगेगी और डेसिमल कहाँ लगेगा, that you know. ओके, प्लीज नोट डाउन दीज ऑल आंसर्स। एंड जो मैंने डिस्कस नहीं किए यहाँ पे, दे आर इजी एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। डू एंड मैच योर। ओके, कम टू assertion reason बेटा। अगेन वी आर डूइंग assertion reason with answers. Everybody has come to know multiplicative inverse क्या होता है, ठीक है? तो 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6, assertion reason, राइट डाउन द आंसर। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज आई वांट टू टेल यू कि कैसे स्टेप्स लिखे जाते हैं सारे।
Assertion रीजन में 6th का आंसर डी है, प्लीज कॉपी डाउन। 7th क्वेश्चन ए ऑप्शन, इसमें लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ सबको आते हैं। यू कैन सी लॉज इन योर नोटबुक, अभी अभी जो मेरे सामने लिखे थे आपने 5 और 6 7 जितने भी लिखे थे, फॉलो दोस एंड मैच द आंसर। ओके, 8th क्वेश्चन डी ऑप्शन एंड 9th क्वेश्चन आपका है ए ऑप्शन। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, आप कर पाओगे ये अपने आप, आई नो। Now keep ready your notebook. We are going to do subjective questions. ठीक है, आपके 2 नंबर के 3 नंबर के जो जो क्वेश्चंस आते हैं आपको स्टेप वाइज करने हैं। राइट डाउन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल 1। Subjective questions, module 1. Okay, let us start doing. First question is, copy down the question also, write the question in your notebook. We have to find the value of x. 5 by 3 raised to power minus 2 into 5 by 3 raised to power minus 14. ठीक है, is equal to 5 by 3 raised to power 8x. Right? This is the question. We have to find the value of x. Yes. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आप करोगे, सबसे पहले आपने ध्यान देना है बेस कैसा है और पावर कैसी है। What is the base here? Who will tell me now? Payal, 8th. What is the base here in this question? all of you. अभी थोड़ा फास्ट फास्ट आ जाओ। वेरी गुड बेटा। go back. Come. अभी you come आए। चलिए जल्दी आइए आप। Yes, you come. Ma'am, 5/3. 5/3, वेरी गुड। 5/3 सबको सेम दिख रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है, ये सेम है दोनों साइड पे। अप्लाई द लॉ। कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है प्लीज बता दो, आप ही बताओ जल्दी से, कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हो इसमें? Product of power law. या देन व्हाट यू विल बी राइटिंग, यहाँ पे क्या लिखोगे? 5/3 रेज़ टू पावर क्या लिखोगे? 1 plus 2. y प्लस 2। प्लस 2 क्यों? प्लस 2 क्यों बना दिया हमने इसको? -2 था ना यहाँ पे। Ma'am, -2 हाँ जी, plus -14. या दैट इज -14 ओनली। प्लस माइनस है तो दोनों आप पावर आपस में प्लस होनी है। प्लस का मतलब कि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। राइट, इज इक्वल टू 5/3 रेज़ टू पावर 8x। ओके, गो बेटा, वेरी गुड। करो अभी जाके नोटबुक में करो इसको। ओके, आई नो काफी बच्चों ने कर लिया होगा, हाथ खड़े करो किसी ने किया है तो। ओके गुड, करते रहो इसको बाकी बच्चे, प्लीज कंटिन्यू। You know it is base is same on both the sides, left side and right side. You know it 5/3 raised to power -16. मुंह से बोलते भी रहो, अपनी अपनी लिप सिंक करो बेटा। 5/3 raised to power -16 is equal to 5/3 raised to power 8x. You know base is same on both the sides. We can equate the powers. So -16 will be is equal to 8x and x will be equal to -2. Do it yourself. आपको आता होगा ये क्वेश्चन। Do it. करो और फिर मैच करो बोर्ड से। Don't copy. ठीक है, 8th में आपको यही आता है कि आपके नेगेटिव नंबर बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में और आपका फ्रैक्शन वाले नंबर ज्यादा आते हैं। डरना नहीं है उनसे, फ्रैक्शन का आए चाहे नहीं आए, हमें पता है कि बेस जो है वो सेम है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन इज सेम। सेकंड क्वेश्चन यू कैन ट्राई एट होम। ओके, मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपके साथ करूंगी, थर्ड पार्ट इसका।
क्योंकि सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, आपको पता है बेस सेम है, कैसे हमने चलना है आगे, कौन सा लॉ अप्लाई करना है। किसी को डाउट है तो प्लीज स्टैंड एंड आस्क मी, कोई चीज समझनी है तो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फर्स्ट पार्ट, एक बार हाथ खड़ा करो, टेल मी बेटे, देन आई विल कम टू नो कि आप सेकंड पार्ट कर पाओगे। गुड, देन यू कैन डू सेकंड आल्सो, वेरी गुड। थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू डू हियर। थर्ड पार्ट इज 2 raised to power -1। जल्दी से कॉपी डाउन करो क्वेश्चन को, ध्यान से दूर दूर लिखना सबको। हर एक नंबर आपका 1 फिंगर के गैप पे होना चाहिए। कई बार हमें अपनी राइटिंग में ही कंफ्यूजन हो जाती है लिखते लिखते, व्हेन वी राइट इट राइटली। एक एक फिंगर का गैप करके नंबर्स को लिखो दूर दूर, नंबर शुड बी सीन क्लियरली। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्या करना है, बट आप अपना लॉ अप्लाई करो, अपनी नॉलेज अप्लाई करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है। आपकी नॉलेज आपको कह रही है कि हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है सबसे पहले, फिर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करो इसको। वेरी गुड, स्टार्ट करो करना अपनी अपनी नोटबुक में। वेरी गुड, सबकी पावर -1 आ रही है, उनको पॉजिटिव बनाओ। कैसे पॉजिटिव बनाओगे? बी सेक्शन, निवान थोड़ा सा बताओ मेरे को आगे आके, हाउ विल यू मेक इट पॉजिटिव? निवान, यू आर प्रेजेंट बेटा? मैम आई रिक्वेस्ट यू, पीछे से कई बच्चे अगर बैठे हैं जिनको नहीं समझ आ रही, दे कैन कम एंड टेल मी, थोड़ा मेरे को पता चले कि हैव यू अंडरस्टूड। एनी चाइल्ड फ्रॉम द बैक साइड, नाउ बी सेक्शन। Okay, I'll be doing it for you then, beta. 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. You know it कि अगर हमारे पास नेगेटिव पावर आती है तो हम उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको साथ साथ लिखते जाएंगे। दोनों लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों को लिखते जाओ साइड बाय साइड, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम। इसका एलसीएम लो जल्दी से। यू नो हाउ टू सॉल्व इट। फ्रैक्शंस आपको किए हुए हैं, आपने 6th में 7th में आपने किया हुआ है, रैशनल नंबर भी किया हुआ है। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस फ्रैक्शनल पार्ट। टाइम अप हो रहा है आपका, आई एम डूइंग इट फॉर यू। 24 इसका एलसीएम आएगा। When you will be doing it, it will be like this, is equal to 1. Okay, 25 by 24 raised to power x is equal to 1. आपको x की वैल्यू निकालनी है। You know, आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे भी कुछ ऐसा सेम फ्रैक्शन चाहिए, तभी आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 को क्या हम 25 by 24 raised to power 0 लिख सकते हैं? Who say yes? Raise your hand जिनको लगता है कि हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम 25 by 24 raised to power 0 लिख सकते हैं। यस, जो भी फ्रैक्शन आपके पास आ रहा है, जितना भी नंबर यहाँ पे आ रहा है, वहां पे सेम एज इट इज लिख दो और उसकी पावर लगा दो 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है, आंसर इज ऑलवेज 1। ठीक है, नाउ यू कैन इक्वेट देम, यू कैन टेल कि x इज इक्वल टू 0। Okay, this was new question for you. Please revise once more at home. ठीक है? Okay बेटा, put star over here. आपको पता होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन हमारे पास कोई भी यहाँ पे आ जाए, सपोज मेरे पास यहाँ पे -25 by 24 आ जाता, ये आता, तो भी हमने इसको -25 by 24 लिख देना था। जो भी नंबर आएगा उसको हम 0 की पावर बना के लिख देंगे। Okay बेटा, you have learned many things today. Please try other questions also. किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कुछ पूछना है?
Only practice is required, beta. In this chapter na, practice is required maximum of the question. Randomly कोई भी क्वेश्चन बुक से उठाओ, इसको करो, अपना लॉ अप्लाई करो, नेगेटिव पावर को यूज करो, रेसिप्रोकल यूज करो. ओके, चलो ऑल द बेस्ट बेटा. टाइम इज अप नाउ. बाय बाय. बाय बाय.